Good afternoon friends. I welcome you all on my YouTube channel which name is Effort Foundation Classes. In yesterday classes, or you can say in previous classes, we started with a new chapter which name is rock. Okay, and we see the composition of rock, how our rock form with the help of different type of minerals and elements. Okay, and we also see the different type of rock on the basis of mode of occurrence and origin, like igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Let's take a quick recap from previous lecture. Is just take 5 मिनट और ये रिवीजन हो जाएगा जो स्टूडेंट नए हैं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको एक वार्म अप मिल जाएगा. ओके, सो व्हाई वी स्टडीड रॉक? बिकॉज आवर अर्थ is made up of rock, and rock is made up of minerals. Means 2 to 3 minerals combined to form rock. Okay, and minerals is further composition of elements. Means 2 to 3 elements combined to form minerals. So we can also say like that कि हमारी जो अर्थ है वो एलिमेंट्स की कंपोजिशन से बनी है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो हमारी अर्थ है वो मिनरल्स की कंपोजिशन से बनी है. ओके, हमने प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल लिया था इग्निस रॉक का ग्रेनाइट का, जिससे हमने इस डेफिनेशन को जस्टिफाई किया था. ठीक है ना. ग्रेनाइट इज ए इग्निस रॉक और इन टूडेज क्लासेस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इग्निस रॉक इन अ होलिस्टिक वे. आज हम इग्निस रॉक के बारे में ही पढ़ेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन इग्निस रॉक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द size of crystal, how many types of igneous rock are present on the basis of mineral compositions and chemical structure of igneous rock. Okay, आज हम इस सभी टॉपिक जो रिलेटेड है igneous rock से उनको देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो ग्रेनाइट is made up of 3 type of minerals: quartz, feldspar and the last one is biotite. Okay, and quartz minerals is made up of 2 elements: silica and the second one is oxygen. And feldspar is a silicate of aluminium, magnesium, iron or etc. And biotite is a composition of 2 elements: mica and iron. Okay, means 2 element silica and oxygen combined to form 1 mineral, quartz. Okay, and 3 minerals: quartz, feldspar and biotite combined to form granite rock. Okay, hope you understand the composition of our rock. So let's started with the today's topic, igneous rock, and in tomorrow classes we see the sedimentary rock and metamorphic rock and rock cycle, and then our rock chapter will be finished. And one request to the all students who are watching my video is
प्लीज़ रिवाइज एज मच एज यू कैन। ओके, रिवाइज करके आओ स्टूडेंट्स, रिवाइज से ही आप इसको रिटेन कर पाओगे और सही टाइम आने पे इसको रिकॉल कर पाओगे और इसको वोमिट कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, ऑन द पीस ऑफ पेपर। ओके, तभी आपको सिलेक्शन होगी, अदरवाइज भूल जाओगे आप। इग्निस रॉक, igneous rock. Word ignis came from Latin word ignis, which mean fire. अब इसका ये मतलब नहीं है कि ignis rock फायर से फॉर्म हुई है, ठीक है ना। जैसे ignis rock is a form due to cooling, solidification and crystallizations of molten material which is also known as मैग्मा और लावा। अब जो हमारी इग्निस रॉक है वो वोल्केनिक मटेरियल लावा और मैग्मा की ठंडे होने से बनी है, ठीक है ना। अब जो लावा होता है वो रेड कलर का होता है और वेरी हॉट होता है, तो समटाइम स्टूडेंट इसको रिलेट कर लेते हैं कि भाई इग्निस रॉक है जो फायर से बनी है, पर ऐसा नहीं है। ओके, इग्निस रॉक इज फॉर्म्ड due to cooling, solidification and crystallization of hot molten material called magma और लावा। ओके, जो हमारी इग्निस रॉक है वो फॉर्म्ड हुई है जो लावा है और मैग्मा है, क्या है, एक मोल्टन मटेरियल है, उसकी कूलिंग से, सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टल बनने से हमारी इग्निस रॉक फॉर्म हुई है। एंड इग्निस रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रॉक, पेरेंटल रॉक, और प्राइमरी रॉक। जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई तो वो इज़ ए लाइक ए हॉट फायर बॉल, ठीक है ना। धीरे धीरे मिलियंस ईयर ऑफ ईयर इसको लगे ठंडा होने में, ठीक है ना। ठंडा होने से क्या हुई है, सॉलिडिफाइड हुई, इसके क्रिस्टल बने और हमारी अर्थ जो क्रस्ट फॉर्म हुई वो इग्निस रॉक से हुई, ठीक है ना। और ऑल द रॉक और ऑल टाइप ऑफ रॉक present on our earth is made up of igneous rock. That's why we call it as igneous rock। मतलब जितनी तरह की भी रॉक हैं, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, और मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, सभी जो बनी है वो इग्निस रॉक से ही बनी है। ओके, नाउ वी सी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आवर इग्निस रॉक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। अब हमें
क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? जो इग्निस रॉक है वो वेरियस फॉर्म में है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ crystal size and different type of mineral compositions and the chemistry or chemical composition of igneous rock. Okay, एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। The igneous rock which form inside of our earth is called as intrusive rock, and the rock which form on the upper surface of our earth, mean outside of our earth, is called extrusive rock. एक्सट्रूसिव रॉक का कोई एग्जांपल क्या है? बायोटाइट्स हो गया, ठीक है ना, और क्या एग्जांपल हो सकता है? गैब्रो हो गया। और इंट्रूसिव रॉक का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। ओके, ये क्या है? मैग्मा चैम्बर। Inside this magma chamber we have hot molten material which we also known as magma और lava, ठीक है ना। और ये क्या है? ये कंड्यूसिव पाइप है, through which hot molten magma came out of the surface of our earth. ओके, और ये क्या है? वेंट है, और ओपनिंग भी बोल देते हैं। अब जो रॉक है वो सोलिडिफाइड हो रही है एट द एक्सटीरियर ऑफ आवर अर्थ और इनसाइड इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ। जो रॉक हमारी अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होगी वो बहुत रैपिडली ठंडी होगी। क्यों? टेम्परेचर कंट्रास्ट इज़ सो हाई। मतलब जो मैग्मा का टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, और जो आउटसाइड जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर 24 डिग्री है, और जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बहुत रैपिडली कूल डाउन होगी, और जो रैपिडली कूल डाउन होने की वजह से जो उसके क्रिस्टल हैं उनको बनने में बहुत कम टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो जो क्रिस्टल हैं वो बहुत ही माइन्यूट फॉर्म में बनेंगे। और जो इनसाइड ऑफ आवर अर्थ, जो हमारी इग्निस रॉक है, जो हमारे इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में है, जो क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और लावा का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो कूलिंग होगा उसको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है ना। बहुत आराम से ठंडी होगी वो, ठीक है, जिससे कि क्रिस्टल बनेंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे इग्निस रॉक के। ओके, सो इग्निस रॉक प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड एज extrusive igneous rock, and the rock which present inside our earth is called intrusive igneous rock. And intrusive igneous rock is further divided into two. Okay, first is hypabyssal intrusive igneous rock। ये कहाँ फॉर्म होती है?
जस्ट बिलो द अर्थ, जस्ट बिलो द क्रस्ट। जो प्लूटोनिक इग्निस रॉक है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? डीप इनसाइड द अर्थ। अब जो ये डीप इनसाइड द अर्थ होगी प्लूटोनिक रॉक, तो मतलब इसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसलिए इसके बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है ना। सो ये मोर कोर्सर होगा, मतलब बिगर इन साइज, बिग क्रिस्टल आर फॉर्म्ड। और जो हाइपरबिसल रॉक है वो जस्ट बिलो द क्रस्ट होगा, तो ये जल्दी ठंडा होगा, तो इसके क्या होगा, ये कोर्सर तो होगा बट स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट, जो इंट्रूसिव रॉक का जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास है वो ग्रेनाइट है, और जो एक्सट्रूसिव रॉक का बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास है वो बायोटाइट है। अब जो प्लूटोनिक इग्निस रॉक है वो कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। और जो हाइपरबिसल इंट्रूसिव रॉक है वो जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक बेड है ये, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्मा चला जाएगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, इग्निस रॉक मिल जाएगी। ओके, अब जो हमारी एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक है, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएगी ये इजीली क्या हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाए, इजीली मतलब रोड हो जाएगी, मतलब इजीली मतलब डिन्यूडेशन हो जाएगा इसका। पर जो इंट्रूसिव इग्निस रॉक है ये हार्ड रॉक है, ठीक है ना। जो वाटर है वो बहुत हार्डली इसके जो क्रैक्स हैं उसमें पहुंचता है, जिससे क्या होता है, ये प्रोन टू केमिकल वेदरिंग है। बट ड्यू टू व्हेन ये एक्सपोज होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, ड्यू टू रैपिड डिन्यूडेशन प्रोसेस, जो हमारी जो इग्निस रॉक है ये केमिकल और फिजिकल वेदरिंग की वजह से जल्दी क्या हो जाती है, इसका इरोजन हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जब ये बाहर आएगी इंटी अर्थ से तो ये सन को एक्सपोज होगी, ठीक है ना। एक तो इसकी रैपिड कूलिंग होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब ये सन को एक्सपोज होगी तो जो इसके अंदर मिनरल्स होंगे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, और जब रात को ये मिनरल्स कूल डाउन होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा, ठीक है ना, और वो पीसीज में बढ़ जाएगी, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में बढ़ जाएगी। ओके, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी रॉक। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्निस रॉक। अब
जो इग्निस रॉक है वो वेरियस फॉर्म में पाई जाती है। एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक, इंट्रूसिव इग्निस रॉक, स्मॉल क्रिस्टल इग्निस रॉक, बिग क्रिस्टल इग्निस रॉक, and it's also differentiated on the basis of chemical compositions and different type of mineral present in the igneous rock. So first क्या है, classification of igneous rock on the basis of chemistry और mineral composition of igneous rock. अब on the basis of presence of minerals, our igneous rock is divided into two: मैफिक और फेल्सिक। मैफिक मीन लाइट कलर्ड मिनरल, ओके। और फेल्सिक मीन, आई थिंक आई मेक अ मिस्टेक, फेल्सिक मीन लाइट कलर्ड मिनरल्स और मैफिक मीन डार्क कलर्ड मिनरल। और मैफिक इज डार्क कलर्ड मिनरल। अब फेल्सिक इग्निस रॉक में क्या होगा, फेल्ड्सपर जो है फेल्ड्सपर इज मोर इन क्वांटिटी, और जो इसका फेल्सिक नेम हुआ, जो डिराइव हुआ है, वो फेल्ड्सपर मिनरल की वजह से ही हुआ है। अब जो मैफिक मिनरल्स है, इसके अंदर क्या होता है, इन मैफिक इग्निस रॉक the feldspar mineral is in less quantity. Okay students, and in felsic mineral silica content is more, and in mafic mineral silica content is less. Okay student, in mafic igneous rock we have iron and magnesium, that's why we called it as mafic igneous rock. Okay students, on the basis of mineral composition, third type of igneous rock is, यहाँ पे लिख लेते हैं, अल्ट्रा मैफिक इग्निस रॉक।
जो अल्ट्रामैफिक इग्निस रॉक है, इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो हैं, फर्स्ट है पायरोजीन एंड द सेकेंड वन इज ओलिवाइन मिनरल्स and the third one is, अब जो अल्ट्रामैफिक इग्निस रॉक है वो दो मिनरल से बनी है, पायरोजीन मिनरल्स एंड ओलिवाइन मिनरल्स। और जो इसका एग्जाम्पल है इस रॉक का एग्जाम्पल है ड्यूनाइट एंड पायरोटाइट। ओके, so on the basis of mineral compositions we have three type of igneous rock: mafic, felsic and ultramafic igneous rock. So जो मैफिक इग्निस रॉक है, फेल्सिक इग्निस रॉक है, एंड द लास्ट वन इज अल्ट्रामैफिक। इग्निस रॉक है। अब इसके अंदर जो फेल्सिक इग्निस रॉक है, इसके अंदर सिलिका कंटेंट जो है वो मोर है, बहुत ज़्यादा है। सो ये क्या होगा, हार्ड रॉक होगी। अब जो मैफिक इग्निस रॉक है, इसके अंदर सिलिका कंटेंट कम है, बट आयरन और मैग्नीशियम की कॉम्पोजिशन से बना है ये। सो ये जो है ये वीक है। और मोर प्रोन टू केमिकल वेदरिंग। when it came in contact of water, जो हार्ड रॉक है ये प्रोन टू केमिकल वेदरिंग है। बट it easily denuded through physical and chemical weathering. Okay student, and ultramafic igneous rock is also easily eroded when it came in contact with water. Okay student, now we see the next classification of rock on the basis of texture, on the basis of size of crystals. Okay students, second classification is on the
basis of texture of grain present in igneous rock. ओके, सो फर्स्ट वन क्या है, जो इसमें फर्स्ट वन है वो है फेनेरेटिक। इग्निस रॉक मीन जो क्रिस्टल हैं वो इजीली विजिबल हैं। क्रिस्टल of pheneritic igneous rock is visible and more coarser. Okay students, and the second one is aphanetic. Igneous rock minerals means crystals of these rock is not visible. ये एफेनेटिक जो इग्निस रॉक है, इसके क्रिस्टल हमें तभी दिखेंगे जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। बहुत ही माइन्यूट साइज के होते हैं। और जो थर्ड वन है वो है ग्लासी इग्निस रॉक। अब इस रॉक के अंदर क्रिस्टल प्रेजेंट ही नहीं होते, नो क्रिस्टल इज प्रेजेंट। अब जो फेनेरेटिक इग्निस रॉक है ये हमें कहाँ पर मिलेगी? ये हमें इनसाइड द इंटीरियर ऑफ अवर अर्थ मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल है उसको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, इसीलिए उसके जो क्रिस्टल हैं वो कोर्सर होंगे, बिग इन साइज होंगे। जो एफेनेटिक इग्निस रॉक है ये कहाँ मिलेगा? ये एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ मिलेगा, क्योंकि जब लावा अर्थ के सरफेस पर आएगा जो टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो लावा है वो बहुत रैपिडली सोलिडिफाइड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लावा है वो स्मॉल क्रिस्टल्स में ठंडा होगा। तो एफेनेटिक इग्निस रॉक का जो बेस्ट एग्जांपल है वो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक है, मीन्स बसाल्ट, गैब्रो। ओके, एंड जो ग्लासी इग्निस रॉक है ये भी हमें एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक का एक एग्जांपल है। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं होगा, ये बहुत रैपिडली कूल डाउन होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन इज पेगमेटाइट। And the pegmatite mean the size of the grain is very coarser, means जो साइज है ना उसका पेगमेटिक रॉक का बहुत बड़ा होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइटिक रॉक है, मतलब ये प्लूटोनिक इग्निस रॉक है जो डीप इनसाइड द अर्थ मिलती है। ठीक है ना? सो नाउ वी क्लासिफाइड आवर इग्निस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ origin and occurrence. Okay students,
इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। टाइप ऑफ igneous rock on the basis of its origin and occurrence। मीन जो ये इग्निस रॉक है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनसाइड अवर अर्थ है और आउटसाइड अवर अर्थ है, ठीक है। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोपोलिथ। ओके, इसको बोलते हैं सिल और शीट। इसको हम बोलते हैं लैकोलिथ। ओके, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। इसको हम बोलते हैं डाइक। ओके स्टूडेंट्स, और जो यहाँ पर डीप इनसाइड है उसको हम बोलते हैं बैथोलिथ। ठीक है, inside our earth we have, अब हर जगह तो नहीं होगा ये, जहाँ पर वोल्केनिक लाइक कंडीशन होगी वहीं पर हॉट मैग्मा, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब जहाँ पर इसको पोर्स स्पेस मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। The igneous rock which present inside of our earth is called intrusive igneous rock. The rock which present on the surface of our earth is called extrusive igneous rock. And the intrusive igneous rock is a more coarser, मतलब big in size, and extrusive igneous rock is minute, मतलब coarser in, and the intrusive igneous rock is a hard and extrusive igneous rock is a weak. When the magma or volcanic lava solidified deep inside the earth
we called it as intrusive igneous rock. And when the magma or lava cooled, solidified or crystallized on the exterior of the earth, we called it as extrusive igneous rock. Okay. And the intrusive igneous rock is more hard, ठीक है ना, और जो इसके क्रैक्स हैं वहाँ से जो पानी है वो बहुत स्ट्रगल से पास आउट होता है, ठीक है ना. सो इंट्रूसिव इग्निस रॉक इज़ प्रोन टू केमिकल वेदरिंग. और जो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक है वो उससे जो वीक इन स्ट्रक्चर है और जो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में होता है वो डिन्यूड हो जाता है, ठीक है ना. सो मोर प्रोन टू केमिकल वेदरिंग. बट जब ये इंट्रूसिव इग्निस रॉक है ये एक्सपोज होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ड्यू टू continuous denudation processes, and when it come into the outermost surface of our earth, and due to physical or chemical weathering it's break down into small segments. Okay. On the basis of the depth of our earth we have the magma solidified in different shapes, ठीक है. सो हुई डिनोटेड इट विद डिफरेंट नेम. सो यहाँ पर आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना कि जो ये लोपोलिथ है, सिल्स है, शीट है, डाइक है, ये टाइप ऑफ इग्निस रॉक है. नहीं, ये इग्निस रॉक जो डिफरेंट शेप में सॉलिडिफाइड हुई हैं उनको हमने नाम दिया है. ओके. अब जो इग्निस रॉक है वो डीप इनसाइड द अर्थ सॉलिडिफाइड होगी तो उसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक इंट्रूसिव इग्निस रॉक. और जो जस्ट बिलो द क्रस्ट होगी तो उसको बोलते हैं हाइपाबिसल इंट्रूसिव इग्निस रॉक. ओके. सो बैथोलिथ इज अ डोम शेप्ड and we also called it as bowl shaped. And it's steep from both the side and hard, rough और very broad in size. ठीक है. जो अब तो बैथोलिथ हमें विजिबल हो गई है. जैसे इन पेनिनसुलर प्लेटूज ऑफ आवर इंडिया द we see the many type of batholithic rock present on the exterior of the earth. ये हमारे अर्थ पर कैसे विजिबल हुई, जो मतलब डिफरेंट इरोजन एजेंट हैं, रिवर है, ठीक है, विंड है, वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करते रहे जिसकी वजह से ये एक्सपोज हुआ. तो ये हमें कहाँ पे दिखती हैं, पेनिनसुलर प्लेटू में, झांसी के अंदर, ठीक है ना, झांसी प्लेटू. वहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको झांसी बैथोलिथ भी बोलते हैं. झांसी बैथोलिथ ये वो प्लेस है जहाँ पर हम बैथोलिथ को देख सकते हैं. ठीक है. प्रेजेंट ऑन झांसी बैथोलिथ. अब क्या हुआ, जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो इसके साथ क्या होता है, गैस भी रिलीज़ होती है. ठीक है, गैस रिलीज़ होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनिक मटेरियल जो है वो रिलीज़ होता है. जब वोल्केनिक गैस इरप्ट आउट होती है तो जो सेडिमेंट्री बेड है तो उसकी वजह से ये कॉनकेव शेप में उठ जाती है. तो फिर क्या होता है, जो मैग्मा ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ पर आएगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा. ठीक है ना, इस कॉनकेव स्ट्रक्चर्स के अंदर. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैकोलिथ.
और इसको मशरूम शेप भी बोल देते हैं। मशरूम शेप ओके। और जो सिल्ट है वो क्या है, ये हॉरिजेंटली प्रेजेंट है एज कंपेयर टू सेडिमेंट्री बेड। सेडिमेंट्री बेड। अब जो फैकोलिथ है, दिस टाइप ऑफ सॉलिड इग्निस रॉक इज प्रेजेंट इन माउंटेनियस रीजन। अब फोल्ड माउंटेन जहाँ पर बनते हैं, जैसे ये वेव फॉर्म में ऐसे, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे सिनक्लाइन, इसको बोलेंगे एंटीक्लाइन। So what is a phaccolith? In phaccolith, hot molten volcanic material solidified in syncline and anticline space of fold mountain। और ये फोल्ड माउंटेन, जहाँ पर फोल्ड माउंटेन होते हैं वहीं पर फॉर्म होती है ये इग्निस रॉक। एंड द नेक्स्ट वन इज लोपोलिथ। द बैथोलिथ इज नॉट बॉल शेप्ड, इट्स ए डोम शेप्ड। ओके, सॉरी, इसको करेक्शन कर लो, यहाँ पे डोम शेप्ड है ये, ठीक है ना। बॉल शेप्ड तो ये होगा, ये तो डोम शेप्ड ही है ना, ये डोम शेप्ड हो गया। लोपोलिथ इज अ बोल्ड शेप एंड वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज सोसर शेप। सोसर से हम खेलते हैं, उस तरह की शेप का नहीं। And the last one is a dike. Dike is like a wall. So dike is like a ball, like a wall, or perpendicular to sedimentary बेड। एंड जो इसकी थिकनेस है, जो थिकनेस है वो फ्यू मीटर टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर हो सकती है, बट जो इसकी लेंथ है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर हो सकती है। ओके स्टूडेंट, और ये हार्ड होता है। अब जो डाइक है, डाइक हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये नर्मदा वैली के अंदर धुआंधार फॉल है, वहाँ पर हमें जो डाइक है वो इजीली विजिबल है। ओके, अब ये क्या हो गया? इंट्रूसिव इग्निस रॉक हो गया ये। अब हम देखेंगे एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक। ओके, इंट्रूसिव मतलब इंट्रूसिव मीन द रॉक, इग्निस रॉक विच प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द अवर अर्थ। ठीक है ना, इनसाइड अवर अर्थ जो होल्ड मैग्मा है वो अर्थ के सरफेस पे तो नहीं आ पाता,
पर वो सोलिडिफाइड हो जाता है डीप इनसाइड द अर्थ एंड द शेप ऑफ मैग्मा सोलिडिफाइड, उसको हमने डिफरेंट नेम दिए हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना। जैसे बैथोलिथ की क्या शेप है, डोम शेप्ड है। लेपोलिथ की क्या शेप्ड है, बोल्ड शेप्ड है, ठीक है ना, शोसर शेप्ड है। सिल्ट और शीट कैसे हैं, स्ट्रेट शेप है इसकी। लैकोलिथ क्या है, कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। इसमें भी एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये कॉनकेव है, ठीक है ना, मशरूम शेप है। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ओके। ऐसे ही फैकोलिथ है, वेव लाइक स्ट्रक्चर है। एंड जो डाइक है वो हमारा क्या है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। जो ये अगर वैसे तो मेंस में पूछा नहीं जाएगा ये, पर अगर जो समहाउ पूछ भी लें तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, आपको वो डायग्राम बनाना है जो मैं अब बनाऊंगा, क्योंकि ये एक तो बहुत टाइम लेगा एग्ज़ाम में जब आप इसको ड्रॉ करोगे। तो जैसे इंट्रूसिव इग्निस रॉक, ये क्या है, ये बैथोलिथ है। विच प्रेजेंट डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो अब हम इसके पे ये लेंगे, ये है हमारा लोकोलिथ, मशरूम शेप्ड, ठीक है। ये क्या है, ये है सिल और शीट, ठीक है। और ये क्या है, फैकोलिथ, ठीक है। ये क्या है, शोसर शेप और बॉल शेप, फैकोलिथ। शोसर और बॉल शेप, लोपोलिथ, ठीक है। और ये क्या है हमारा, डाइक। एंड द विच वन इज लेफ्ट, I think almost we draw alls. This is a batholith, dike, ठीक है, लोपोलिथ। In some book it's also mentioned as lapolith, okay, so don't be confused. Phacolith, and the sill और शीट। अब जो सिल है, वैन सिल जो है थिन होता है, वो जो शीट होता है वो क्या होता है, थिक होता है, ओके स्टूडेंट। अब ये हमें कहाँ पे मिल जाते हैं, ये पेनिनसुलर प्लेटू पे मिल जाते हैं, ठीक है ना। पेनिनसुलर प्लेटू पार्ट ऑफ आवर इंडिया, वो साउथ में प्रेजेंट है, वहाँ पर ये सिल्ट और शीट दिख जाते हैं। जब डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन्स एक्टिविटी होती है, जैसे मतलब रिवर और विंड से, तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं और रिवर इनको अपने पानी के साथ ले जाती है और इनको डिपोजिशन कर देती है प्लेन एरिया में, और ये ब्लैक सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन, ओके। ये है लैकोलिथ, और हुई ऑल्सो कॉल्ड इज लोकोलिथ, मशरूम शेप्ड होता है। सो मेंस में जब ये क्वेश्चन आया तो आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सो हमने इंट्रूसिव इग्निस रॉक के बारे में देख लिया, अब हम देख लेते हैं एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक। हम क्या कर रहे हैं, हम इग्निस रॉक को पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड ओकरेंस, मतलब जो इग्निस रॉक इनसाइड ऑफ आवर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मिलेंगी और जो एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ में मिलेंगी।
ठीक है, जो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक है, अब उसको हम पढ़ लेते हैं। अब जैसे ये जो लावा है, ठीक है, जैसे मैग्मा चैम्बर है, अब जो ये रॉक है प्रेजेंट है, ये इट्स लाइक ए चॉकलेट बार, ठीक है ना। अब जो ये मैग्मा है ये कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है और प्रेशर डाल रहा है इसके बिलो पे, ठीक है ना। जो प्रेशर डालता रहेगा डालता रहेगा डालता रहेगा, तो ये क्या होगी, ब्रेक डाउन होती जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये लावा है इसको एक्सप्लोसिवली ब्रेक कर देगा और आउटसाइड द सरफेस पे ये ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक इज़ टू टाइप, एक्सप्लोजिव एंड क्वाइट टाइप। अब तो एक्सप्लोजिव हो गया और समझ लो कहीं पे क्रैक है, छोटा सा क्रैक है, उससे क्या होगा, धीरे 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 जो मतलब मैग्मा है वो निकलता रहेगा और अर्थ के सर पे डिपॉजिट होता रहेगा। ओके, वो जो मैग्मा डिपॉजिट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ शीट होगा, ठीक है ना। जैसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, स्ट्रेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे मतलब वन टाइप ऑफ इग्निस रॉक आएगी, फिर सेडिमेंट्री रॉक आएगी, डिपोजिशन होगा सेगमेंट का, फिर अनदर रॉक होगी, तो लेयर बाय लेयर ऐसे दिखेगी। तो जो क्वाइट इरप्शन होता है ना लावा का, तो वो भी ऐसे ही लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है। वो कहता है क्वाइट इरप्शन जब होता है लावा का, तब वो फॉर्म होती है। ओके, सो एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक is divided into two. First is explosive and second one is quiet. ओके स्टूडेंट, तो एक्सप्लोजिव टाइप में होगा जो लावा के अंदर जो वोल्केनो के अंदर जो लावा है और मिक्स्ड मटेरियल है वो निकलेगा, गैसेज निकलेगी, ऐश निकलेगी, राख निकलेगी, ठीक है ना। तो उसको डिफरेंट जो जब वो अर्थ के सरफेस पे आएगा वो सॉलिडिफाइड होगा, ठीक है ना। तो उसको डिफरेंट नेम दिए गए हैं। जो बॉम्ब है, बॉम्ब इज कोर्सर इन नेचर, कोर्सर होगा। बॉम्ब इज अ कोर्सर टाइप ऑफ इग्निस रॉक, मतलब बड़े बड़े क्रिस्टल की फॉर्म में हमें ये अर्थ के सरफेस पे मिलेगा, ठीक है ना। बिग रॉक बोलते हैं इसको। और सेकंड वन है लोपोली मीन ऐश और डस्ट केम आउटसाइड आवर अर्थ एंड सॉलिडिफाइड। ओके, अब जो टल्फ है इसको क्या बोलते हैं हम, जो टफ्स है मीन्स कोर्सर एंड फाइनर ग्रेन्स ऑफ volcano solidified on the exterior of the earth. ओके स्टूडेंट, अरे होता है ब्रेसिका। ब्रेसिका is a mixture of big and small crystal
solidified on the exterior of our earth. और ये ईजीली इरोड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिडिफाइड नहीं होता ना, मतलब ये जैसे ही सॉलिडिफाइड होगा अर्थ के सरफेस पे लूजली प्रेजेंट होगा, मतलब ये बिल्कुल चिपका नहीं होगा अर्थ से। जैसे ही कोई इरोजन एक्टिविटी होगी, मतलब इरोजन एजेंट वर्क करेगा, जैसे रिवर हो गया, विंड होगी, तो ये ईजिली इरोड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये ससेप्टिकल टू इरोजन, ये कंसोलिडेट नहीं होता ना, जैसे मतलब एक्सप्लोजिव टाइप में जब ये अर्थ के सरफेस पे मैग्मा आएगा तो इसके बड़े बड़े क्रिस्टल होंगे, ऐश फॉर्म में होगा, स्मॉल सेगमेंट में होगा और मिक्स क्रिस्टल बनेंगे। तो ये जब अर्थ के सरफेस पे कूल डाउन होके सॉलिडिफाइड होगा तो ये कंसोलिडेट नहीं होगा अर्थ के साथ। जैसे ही कोई इरोजन एक्टिविटी होगी, डिन्यूडेशन एक्टिविटीज़ होगी और इरोजन एजेंट वर्क करेगा, वैसे ही ये अर्थ के सरफेस से वो सेप्ट हो जाएगा और किसी अदर सरफेस पे चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे अगर जो विंड इरोजन काम करेगी तो ये हवा के साथ ट्रैवल करके किसी और प्लेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। अगर जो रिवर एज एन एजेंट काम करेगी वहाँ पर, तो वो रिवर के वाटर के साथ चला जाएगा और अदर प्लेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी सी द लास्ट टाइप ऑफ आवर रॉक on the basis of chemical composition. On the basis of chemical composition, our earth, on the basis of chemical composition, igneous rock is of two type. First is acidic igneous rock and the second one is basic igneous rock. So various variety of igneous rock present on our earth and having वेरियस केमिकल कॉम्पोजिशंस। ठीक है ना, डिफरेंट मिनरल से मिलकर बनी होती है। पर जो सभी इग्निस रॉक हैं उसके अंदर एक चीज़ कॉमनली प्रेजेंट होती है, वो है सिलिका। तो ठीक है, तो एसिडिक इग्निस रॉक, बेसिक इग्निस रॉक, इंटरमीडिएट इग्निस रॉक, ठीक है ना, अल्ट्रा बेसिक इग्निस रॉक। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ सिलिका कंटेंट। ओके, तो थर्ड वन है इंटरमीडिएट इग्निस रॉक एंड द लास्ट वन इज अल्ट्रा बेसिक इग्निस रॉक। ओके, सो इन एसिडिक इग्निस रॉक silica is in between 65 to 85%। ओके, ये हार्ड होता है, हार्ड एंड लाइट इन वेट। And this type of igneous rock is used in construction of building. Like granite, इसमें आयरन और मैग्नीशियम लेस इन क्वांटिटी। ओके, जो बेसिक इग्निस रॉक है
उसके अंदर क्या होगा, सिलिका कंटेंट इज बिटवीन 40 to 45%, ठीक है ना। सो आयरन एंड मैग्नीशियम इज प्रेजेंट एंड फेल्ड्सफर जो मिनरल है मिनरल इज इन लेस क्वांटिटी, ठीक है। ये वीक होता है, इसका एग्जांपल है बायोटाइट, और ये फ्लूइड लावा से मिलके बना होता है, ओके। और ये किससे होता है, विस्कस लावा से। जो इंटरमीडिएट इग्निस रॉक है, इसके अंदर जो सिलिका है इज नॉट लेस देन एसिडिक इग्निस रॉक और नॉट मोर देन बेसिक इग्निस रॉक, ठीक है। जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इसका तो ग्रेनाइट हो गया, इसका हो गया डोलेराइट, ओके। इसका है, इसका डोलेराइट हो गया स्टूडेंट्स, इसका डायोराइट्स एंड एंड्रीसाइट्स, डायोराइट्स एंड एंडीसाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, and the last one is, first is acidic igneous rock, basic igneous rock, intermediate igneous rock and ultra basic igneous rock is last one। यहीं पे देख लेते हैं इसको, फोर्थ वन को। अल्ट्रा बेसिक इग्निस रॉक। अब इस टाइप की रॉक के अंदर क्या हमें मिलेगा, जो इसमें सिलिका कंटेंट है कंटेंट इज 40% एंड इसका वीक स्ट्रक्चर होता है मोर प्रोन टू फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग। इसका एग्जाम्पल है पीरिडियोटाइट, ओके स्टूडेंट्स। अब ये एक्सप्लोजिव टाइप एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक था, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्वाइट टाइप एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक। अब जो क्वाइट एक्सट्रूसिव इग्निस रॉक है वो एक अर्थ के अंदर कोई पोर्स होगा, मतलब स्मॉल पोर्स होंगे, उससे जो मैग्मा है वो
आराम आराम से स्लोली डिपॉजिट होएगा लेयर्ड बाय लेयर ऑन द एक्सटीरियर क्रस्ट ऑफ आवर अर्थ, ठीक है ना। तो वो बसाल्ट की एक लेयर बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही होल्ट मैग्मा केम इन कॉन्टैक्ट विद आउटर एटमोसफेयर इट सोलिडिफाइड सो रैपिडली बिकॉज टेम्परेचर कंट्रास्ट इज सो मोर। बिकॉज जब लावा का जो टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है, जो आउटर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो डिपॉजिट होगा और ईजीली बहुत रैपिडली क्रिस्टलाइज होगा और बसाल्ट रॉक के अंदर बदल जाएगा। धीरे धीरे ये मतलब डिपॉजिट होता चला जाएगा अर्थ के सरफेस पे बसाल्टिक लेयर की फॉर्म में। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, ठीक है, वहाँ पर ये 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, समझ रहे हो, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो इसका डिपोजिशन है बसाल्टिक शीट का, जो धीरे धीरे मतलब एक्सटीरियर आवर अर्थ पे डिपॉजिट हो रही है। और हम इसको ईजीली हम इसको देख सकते हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट के अंदर, महाबलेश्वर रीजन में भी हमें देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट, सो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, उनको देख लेते हैं 5 से 10 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, ऑलरेडी क्लास लंबी होगी आज, ठीक है। 2 डायग्राम ले लेते हैं हम। ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ये वेंट है। अब यार इसको पानी के पाइप की तरह मत समझना, जो ये वेंट है, ये ओपनिंग है, ये कई 1000 किलोमीटर तक भी हो सकती है। ओके, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर, ये कंड्यूसिव पाइप है, ये वेंट है, ओपनिंग है, ठीक है ना। ये क्या है, एसिडिक लावा। ओके, यहाँ पर हम किसको देखेंगे, बेसिक लावा को। ओके स्टूडेंट, जो एसिडिक लावा है इसके अंदर जो सिलिका का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 60 to 65% है, ठीक है। और इसमें जो मैग्नीशियम है, आयरन है, वो कम मात्रा में है, और जो फेल्ड्सपर मिनरल्स है, क्वार्ट्ज मिनरल्स है, वो ज़्यादा नंबर के अंदर है। अब सिलिका कंटेंट इज़ मोर, (65 to 85%). ओके, मतलब सिलिका कंटेंट इग्निस, इस टाइप की इग्निस रॉक की एसिडिटी को डिफाइन नहीं करता, ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि सिलिका कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये एसिडिक नहीं है। ओके, मैग्नीशियम और आयरन लेस इन नंबर इन लेस इन क्वांटिटी। ये हाईली विस्कस होता है, ये विस्कस होगा तो ये ऐसे डिपॉजिट होगा। ओके, माउंटेन की तरह बनेगा ये। ओके, स्टीप होगा, टॉल होगा, जो बेस एरिया है लेस ब्रॉड होगा ये, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, सिलिका कंटेंट कम होगा, आयरन एंड मैग्नीशियम ज़्यादा होगा, और ये मोर फ्लूइड होगा, ठीक है ना।
ये प्लेटू की शेप में बनेगा, वो माउंटेन की शेप में बनेगा। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं सिलिका इज इन बिटवीन 45 to 65%, है ना, मोर विस्कस, मोर लिक्विड, लेस विस्कस, कवर मोर एरिया। ओके स्टूडेंट, अब ये बसाल्टिक रॉक है। ओके स्टूडेंट, ये भी बसाल्टिक रॉक है स्टूडेंट। ओके, अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इग्निस रॉक। अब सम टाइम यहाँ पर जैसे ये वोल्केनिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे एक क्रिएटर बन जाता है और यहाँ पर क्या होता है, वाटर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिएटर लेक। ओके, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। और जब ये क्रिएटर डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब जैसे ये इरप्शन यहाँ हुई, अब वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो को यहाँ से जगह मिल गई तो यहाँ पे वो होगी, तो यहाँ पे कैल्डेरा बन गया, क्रिएटर बन गया, यहाँ पे क्रिएटर बन गया, ऐसे डिपोजिशन साइड बाय साइड होने लगी। ठीक है, डिपोजिशन लावा। तो जब ये क्रिएटर कंबाइंड हो जाते हैं तो ये राउंड इन शेप दिखते हैं ऊपर से, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, कैल्डेरा। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्रिएटर को हम बोल देते हैं कैल्डेरा। अब जैसे अब यहाँ से ओपनिंग मिल गई कंड्यूसिव पाइप को, यहाँ से मिल गई। ठीक है, फिर क्या होगा, इनसे लावा ट्रेवल होगा और यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू होगा ऐसे। मल्टीपल ओपनिंग ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड एज पैरासिटिक वोल्केनो। ठीक है ना, जिस वोल्केनो की मल्टीपल ओपनिंग होगी, जैसे ये 1 ओपनिंग होगी, सेकंड ओपनिंग ये होगी, थर्ड ओपनिंग ये होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक वोल्केनो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द लास्ट टॉपिक of today's lecture. Now we see the characteristic feature of igneous rock. We see the classification of igneous rock. Now we see the characteristic